Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today the topic of our discussion is marketing channels and wholesaling. As in the previous lectures we have discussed about retailers. So in this lecture we will discuss about wholesaling. Wholesalers, retailers both are in distribution channel, are a part of distribution channel through which the final goods and services reach to the consumer. ठीक है जी. Retailers, suppliers supply the raw material to the company. The company converts those raw materials into final goods and services. Then companies deliver those goods and services to the middlemen, means to the marketing channels. Who are the marketing channels? The wholesalers, the retailers. Then wholesalers supply those goods to the retailers, and then retailers supply those goods to the end users. So moving towards our lecture. Objectives of this lecture would be to know about the marketing channels, to understand the role of wholesalers in the marketing channels, and to know the major types of wholesalers, and to understand the marketing decisions that the wholesalers are facing. Okay, Ji. So what actually is a marketing channel or distribution channel? These are a set of interdependent organizations involved in the process of making a product or service available for user consumption by consumers or business users. ठीक है जी. Interdependent organizations है, independent organizations नहीं है, interdependent organizations है, एक दूसरे के ऊपर depend करते हैं. और जो आपकी final product और service है उसको end user तक available करते हैं. देन इसमें टाइप्स हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स हैं, देन इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स हैं. डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कौन सा है? जिसमें नो इंटरमीडिएरी लेवल इज इन्वॉल्व. प्रोड्यूसर सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर. ठीक है जी. देन दीज टू आर इनडायरेक्ट marketing channels. In this marketing channel only one intermediary is involved, means one retailer is involved, and in this marketing channel two intermediaries are involved, means wholesalers and retailers. प्रोड्यूसर से गुड जाता है होलसेलर्स को, देन होलसेलर से रिटेलर्स को, देन रिटेलर्स से कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होते हैं. And in the indirect marketing channel, a channel containing one or more intermediaries level. ठीक है जी. जैसे कि मैंने ये बताया, इसमें एक इंटरमीडिएरी लेवल इन्वॉल्व है, ओनली वन रिटेलर्स इन्वॉल्व, और इसमें टू इंटरमीडिएरी लेवल्स आर इन्वॉल्व. ओके जी. होलसेलिंग क्या है? All the activities involved in selling goods and services to those buying for resale or business use. रिटेलर्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे एंड यूजर्स को, ताकि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करें. लेकिन होल सेलिंग में हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, जो कि उसको रीसेल करते हैं. ठीक है. बाइंग फॉर रीसेल हम उनको प्रोवाइड करते हैं जो उसको फर्दर रीसेल करें, मीन्स अपना पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करते, उसको फर्दर रीसेल करते हैं. या फिर इंडस्ट्रीज को हम रॉ मटेरियल्स या गुड्स या वुड या इस तरह के मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि उसको बिजनेस यूज में यूज करते हैं, उसकी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी फर्दर असेंबलिंग करते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, और उससे फिर फाइनल गुड्स क्रिएट करके देन उसको सेल करते हैं. ठीक है जी. Wholesaler क्या है? Firm engaged primarily in wholesaling activity are called wholesalers. Then what are the functions that wholesalers perform? Wholesalers add value by performing one or more of the following functions. क्या करते हैं? Selling and promoting करते हैं हमारे लिए, हमारी products को sell करते हैं. Promote करते हैं कैसे? क्योंकि इनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल कस्टमर्स जिनको मैन्युफैक्चरर नहीं पहचानता, प्रोड्यूसर नहीं पहचानता, उसको ये लोग मार्केट में क्योंकि वर्कआउट कर रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनके. ठीक है. हमारी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और डीपली पेनिट्रेट करते हैं इनटू द मार्केट ड्यू टू देयर peer group contacts. Then management services and advices. Improve store layouts and display of retailers, train their sale clerks and set up accounting and inventory control system. Help out करते हैं retailers को, जिनको goods and services provide करते हैं, उनको help out करते हैं store की layout में, display में.
बल्क ब्रेकिंग, बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, देन उसको स्मॉल क्वांटिटीज में फर्दर रीसेल करते हैं। ठीक है जी। सेव द कस्टमर्स मनी बाय बाइंग इन कार लोड लॉट्स। ठीक है, कार लोड लॉट्स में लो प्राइस में ये लोग परचेज करते हैं, ब्रेकिंग द बल्क करते हैं, लार्ज लॉट्स को इनटू स्मॉल क्वांटिटीज में ब्रेक आउट करते हैं और उसको फिर फर्दर सेल आउट करते हैं। ओके जी। वेयर हाउसिंग क्या है? कस्टमर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये लोग अपनी इन्वेंट्रीज में होल्ड करते हैं। ठीक है, अपने पास स्टोर करते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं। तो जो स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो कस्टमर्स की रिड्यूस हो जाती है। अपने वेयर हाउसेस में उसको स्टोर करते हैं इन्वेंट्रीज को, और फिर जब रिटेलर्स को प्रोडक्ट्स रिक्वायर होती हैं तो उनको प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग कैसे करते हैं? क्रेडिट्स पे रिटेलर्स को मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्रेडिट्स पे उनको गुड्स सप्लाई करते हैं। एंड जो सप्लायर्स उनको मटेरियल या जो सप्लायर्स उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे होते हैं उनको ऑन टाइम पेमेंट्स करके या अर्ली ऑर्डर्स करके उनको भी फाइनेंस करते हैं। रिस्क बेयरिंग, ऑब्वियसली व्हेन दे टेक टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ये वो ये ओन करते हैं। फिर इन केस अगर कोई थेफ्ट हो जाती है, प्रोडक्ट्स की डैमेज हो जाती है, स्पॉइलेज हो जाती है, तो वो रिस्क होलसेलर्स पे होता है, बिकॉज दे टेक द टाइटल प्रोडक्ट्स लेके अपने गोडाउन्स में, अपने स्टोर रूम्स में, अपने वेयर हाउसेस में उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर इन केस ऑफ एनी रिस्क, जो रिस्क होता है वो होलसेलर के ऊपर होता है। ठीक है जी। देन दे प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन टू द सप्लायर्स, जो उनको गुड्स प्रोवाइड करते हैं उनको मार्केट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट डिमांड्स, अबाउट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, और कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, न्यू प्रोडक्ट्स, प्राइस डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। Then there are different types of wholesalers: merchant wholesalers, agents and brokers, and manufacturer sales branches and offices. ठीक है जी, ये 3 मेन टाइप्स ऑफ होलसेलर्स हैं। फिर फर्दर इसमें इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। मर्चेंट होलसेलर्स को डिवाइड किया है फुल सर्विस होलसेलर्स में और लिमिटेड सर्विस होलसेलर्स में। ठीक है जी। देन फुल सर्विस होलसेलर्स हैं होलसेल मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। देन लिमिटेड सेल होलसेलर्स को डिवाइड किया है कैश एंड कैरी होलसेलर्स, ट्रक होलसेलर्स या ट्रक जॉबर्स, ड्रॉप शिपर्स, रैक जॉबर्स, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स एंड मेल ऑर्डर होलसेलर्स। Then second type of wholesalers are brokers and agents. Then agents की further classification है manufacturer agents, selling agents, purchasing agents, commission merchants. Then third type of wholesaler है manufacturers and retailers branches and offices. ठीक है जी, इसमें sales branches and offices हैं और purchasing offices हैं. Okay जी, now we will discuss all of them one by one. Merchant wholesalers. Who are merchant wholesalers? They are independently owned businesses. They take title to the merchandise they handle. In different trades, they are called jobbers, distributors, or mill supply houses. Further, इनके classifications है full service wholesalers और limited service wholesalers. Full service wholesalers क्या है? They provide a full range of services. ठीक है जी, like stocks carry करते हैं, sales force को maintain करते हैं, क्रेडिट पे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, डिलीवर करते हैं आपके लिए, एंड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट असिस्टेंस मींस एक फुल पैकेज आपको देते हैं, फुल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी फर्दर पे क्लासिफिकेशन है होलसेल मर्चेंट्स sell primarily to retailers and provide a full range of services. General merchandise wholesalers carry several merchandise lines, whereas general line wholesalers carry one or two lines in depth. Specialty wholesalers specialize in carry only part of line. For example, health food wholesalers हैं, seafood wholesalers हैं, ठीक है। seafood wholesalers for example, seafood है आपको प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट पे प्रोवाइड करते हैं, बल्क में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपके लिए डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि इसको ऐसे प्रिजर्व करना है, ऐसे स्टोर करना है, ये इस तरह से इसको आपको फुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं होलसेल मर्चेंट्स।
Then industrial distributors. Who are industrial distributors? They sell to manufacturers rather than retailers. Okay? जो मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको ये लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज सच एज कैरिंग स्टॉक, ऑफरिंग क्रेडिट्स, प्रोवाइडिंग डिलीवरी मींस फुल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट सप्लायर्स फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। जो मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको ये लोग रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑयल, गैस, और वेयर हाउसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये लोग इक्विपमेंट्स और मशीनरीज और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बल्क में प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनको देते हैं और उनके लिए स्टॉक्स भी कैरी करते हैं। देन जी हमारे पास आ जाते हैं लिमिटेड सर्विस होलसेलर्स। अभी हमने पढ़ा फुल सर्विस होलसेलर्स, फुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नॉन लिमिटेड सर्विस होलसेलर्स ऑफर फ्यूअर सर्विसेज देन फुल सर्विसेज होलसेलर्स, ठीक है जी। इसमें आ जाता है कैश एंड कैरी होलसेलर्स। कैश एंड कैरी होलसेलर्स क्या है? लिमिटेड लाइन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको एक गुड चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, स्मॉल फिश स्टोर रिटेलर है, ठीक है। उसको फिश चाहिए, उसने अपने स्टोर में फिश को सेल आउट करना है, वो जाएगा एक कैश एंड कैरी होलसेलर के पास। कैश एंड कैरी होलसेलर्स ने अपने पास लाइक जो फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स लाइक पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं, ठीक है, लाइक फिश की एग्जांपल ले लें, पेरिशेबल गुड है। फास्ट मूविंग गुड्स अपने पास रखे होते हैं उन्होंने, जो कि मतलब डेली बेसिस पे फास्ट सेल आउट हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। लाइक फिश स्टोर रिटेलर को फिश चाहिए, वो जाएगा इन कैश एंड कैरी होलसेलर के पास, मींस जो मछली का कैश एंड कैरी होलसेलर होगा जिसके पास बल्क में, वो वहां से फिश परचेज करेगा और लाके अपने स्टोर पे रख देगा। तो जो कैश एंड कैरी होलसेलर्स हैं वो नॉर्मली डिलीवर नहीं करते, जो रिटेलर्स हैं वो खुद उनके पास जाते हैं, उनसे बल्क में परचेज करते हैं और लेके अपने स्टोर में फिर उसको सेल आउट करते हैं। Then truck wholesalers or truck jobbers, as the name signifies, selling and delivery function provide करते हैं, ठीक है जी। सेमी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ये लोग सेल आउट करते हैं, लाइक मिल्क है, ब्रेड है, स्नैक फूड है, विच दे सेल फॉर कैश, अपने ट्रक में उसको रख के सुपरमार्केट में, स्मॉल ग्रोसरीज में, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फैक्ट्री, कैफेटेरियाज एंड होटल्स में जाके उसको ये लोग सेल आउट करते हैं, उसको रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। जो जिन्होंने उनको ऑर्डर किया होता है उसको ये लोग सेमी पेरिशेबल गुड्स प्रोवाइड करते हैं, बल्क में प्रोवाइड करते हैं। देन ड्रॉप शिपर्स, they do not carry inventory or handle the product. On receiving an order, they select a manufacturer who ship the merchandise directly to the customer. The drop shipper assumes the title and risk from the time the order is accepted to its delivery to the customer. They operate in bulk industry. ठीक है, अपने पास इन्वेंट्री को स्टोर नहीं करते। जब उनको कोई ऑर्डर देता है कि हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो उसकी जो कंसर्न मैन्युफैक्चरर होता है उसको कांटेक्ट करता है, उससे प्रोडक्ट्स लेके रिटेलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक कोल है, लंबर है, हैवी इक्विपमेंट्स की एग्जांपल्स आप ले लें। देन रैक जॉबर्स हैं, दे सर्व ग्रोसरी एंड ड्रग रिटेलर्स मोस्टली इन नॉन फूड आइटम्स। दे सेंड डिलीवरी ट्रक टू स्टोर्स वेयर द डिलीवरी पीपल सेट अप द आइटम्स। इनके रैक जॉबर्स कौन से होते हैं? ये अपने सेल्समैन्स को गुड्स दे देते हैं, रैक जॉबर्स जाते हैं बड़े स्टोर्स में, सुपर स्टोर्स में, रिटेलर्स के पास जाते हैं, वहां पे रैक्स में इनकी जो अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उसको ये लोग डिस्प्ले में रख देते हैं। अच्छा जी। देन प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? ये फार्मर्स की एक फार्मर्स ने एक कोऑपरेटिव बनाई होती है, ठीक है जी, इसलिए ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट उनकी डिमांड क्या है कि हम लोग मनी अर्न करें। कस्टमर की डिमांड्स क्या है? उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है जी। तो ये लोग कोई कोऑपरेटिव बना लेते हैं, अपनी जितनी भी फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं, ठीक है। और जो फार्मर्स जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको जो उनके नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करते हैं, और फिर जो प्रॉफिट है वो ईयर के एंड में वो लोग आपस में डिवाइड कर देते हैं। इसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स।
owned by farmer members and assemble farm produce to sell in local markets. Okay, जी. The co-ops profits are distributed to the members at the end of the year. They often attempt to improve product quality and promote a co-op brand name. For example, Sunkist oranges. Different farmers हैं, उन्होंने अपनी ब्रांड लॉन्च की सनकिस्ट ऑरेंजेस. वो लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं सनकिस्ट ऑरेंजेस के अंडर नेम. ठीक है, लाइक अलास्का गोल्ड ब्रांड सी फूड है. सी फूड की ब्रांड है. डिफरेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इस ब्रांड को चला रहे हैं, इसके अंडर काम कर रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, सी फूड को सेल करते हैं अंडर दिस नेम, और फिर जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है जी, उसको वो लोग आपस में डिवाइड कर देते हैं. इसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स. देन मेल ऑर्डर होलसेलर्स क्या है? मेल पे होलसेलिंग करते हैं. सेंड कैटलॉग्स टू रिटेलर्स, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स. ठीक है, मेल करते हैं अपने कैटलॉग्स जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं. फिर जो कस्टमर्स हैं वो भी उसी तरह मेल पे उनको कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए. फिर वो उनको ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिलीवर कर देते हैं, प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, स्पेशलिटी फूड एंड अदर स्मॉल आइटम्स. मेंटेन नो आउटसाइड सेल फोर्स. अपनी ही प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं, उसको वो लोग सेल आउट करते हैं, सेल्स फोर्स नहीं हायर करते. मेन कस्टमर्स आर बिजनेसेस इन स्मॉल आउटलाइन एरियाज. ऑर्डर्स आर फिल्ड एंड सेंट बाय मेल. ठीक है, फिल होते हैं ऑर्डर्स थ्रू मेल, सेंट होते हैं थ्रू मेल, ट्रक्स और अदर ट्रांसपोर्टेशन. ओके जी. देन ब्रोकर्स एंड एजेंट्स, दे डू नॉट टेक टाइटल टू द गुड्स. लाइक जो भी हमने पढ़ा मर्चेंट्स पढ़े, उसमें वो लोग टाइटल टेक कर लेते हैं कि टाइटल हमने टेक कर लिया, उसके बाद जो भी ब्रेकेज होगा, रिस्क होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मर्चेंडाइज होलसेलर्स पर. ठीक है, इसकी जो हमने टाइप्स पढ़ी, फुल सर्विस होलसेलर्स, लिमिटेड सर्विस होलसेलर्स, ये सारे रिस्क बेयर करते हैं, अपने पास प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं और रिस्क बेयर करते हैं मर्चेंट होलसेलर्स. लेकिन जो ब्रोकर्स एंड एजेंट्स हैं, दे डू नॉट टेक टाइटल टू द गुड्स. मेन फंक्शन इज टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग. बाय एंड सेलर को, बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाते हैं. Like brokers, chief function is bringing buyers and sellers together and assisting in negotiation. Buyers and sellers को आपस में मीटअप करवाते हैं और उनके दरमियान नेगोशिएशन करते हैं, और जो अपना कमीशन है वो कैरी करते हैं. उसके बाद ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाए तो उसके बाद इनका फंक्शन फिनिश हो जाता है. They are paid by the party who hired them and do not carry inventory, get enrolled in financing or assuming risk. फाइनेंसिंग नहीं करते, एज्यूमिंग रिस्क नहीं करते, इन्वेंट्री अपने पास होल्ड नहीं करते, सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स को आपस में मिलाते हैं, उनकी नेगोशिएशन करते हैं, ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाती है, अपना कमीशन अर्न करते हैं और काम इनका खत्म हो जाता है. लाइक रियल स्टेट ब्रोकर्स जो होते हैं, जो घरों की सेलिंग और परचेजिंग करते हैं, लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्रोकर्स हो जाते हैं, जो हमारे लिए शेयर्स परचेज करते हैं. ठीक है, ये ब्रोकर्स की एग्जांपल्स हैं. Then who are the agents? Represent either buyers or sellers on a more permanent basis than brokers do. Okay? इसमें आ जाते हैं फिर हमारे manufacturer agents. Represent two or more manufacturers of complementary lines. Products are related but not competing. ठीक है, एक different 2 or 3 manufacturer के डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के ये लोग अपने पास प्रोडक्ट्स रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस होती हैं. ठीक है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री. फॉर एग्जांपल प्रिंटर है तो उसके साथ इंक है. ठीक है, तो ये प्रिंटर की 2 ब्रांड्स अपने पास नहीं रखेगा, मींस कंपीटिंग ब्रांड्स अपने पास नहीं रखता, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड्स अपने पास लगता है. लाइक प्रिंटर रखा तो साथ इंक भी रखी है, प्रिंटर भी रखे हैं, इंक भी रखी है, फिर साथ उसके कार्ट्रिजेस भी रखे हैं. या फर्नीचर्स की एग्जांपल ले लें, फर्नीचर की जो है तो उसने अपने पास फर्नीचर रखे हुए हैं, फिर उसके साथ उन्होंने फर्नीचर का जो क्लॉथ है वो भी रखा है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री है. जो कस्टमर्स आते हैं वो फर्नीचर पसंद करते हैं कि हमें ये फर्नीचर चाहिए, उसके साथ वो लोग फिर क्लॉथ भी कहते हैं कि हमें ये प्रिंट चाहिए या ये मटेरियल चाहिए. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अपने पास रखते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के.
A formal written agreement with each manufacturer covers pricing, territories, order handling, delivery service, and warranties and commission rates. Often used in such lines as apparel, furniture, जैसे कि मैंने आपको बताया, and electrical goods. Then आ जाते हैं हमारे पास selling agents have contractual authority to sell a manufacturer's entire output. जो manufacturer अपनी product sell करने में interested नहीं है, ठीक है? The manufacturer either is not interested in the selling functions or feels unqualified. उसको इतनी know how नहीं है, तो वो अब selling agents को hire कर लेते हैं. अपनी जो entire product है वो उनको hand over कर देते हैं कि ये हमारी product है, इसको आपने sell out करना है. The selling agent serve as a sales department and has a different and a significant influence over pricing items and conditions of sale. Obviously जो manufacturer है उसको know how नहीं होती, ये लोग pricing को भी influence करते हैं और जो conditions की sales की conditions हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं. लाइक हमारी टेक्सटाइल की एग्जाम्पल हो गई, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट की एग्जाम्पल हो गई, कोल की एग्जाम्पल होगी, माइन से निकाल के सेलिंग एजेंट्स को दे दिया कि इसको आप लोगों ने सेल आउट करना है. केमिकल्स एंड मेटल्स की एग्जाम्पल आप ले लें. देन हमारे आ जाते हैं परचेजिंग एजेंट्स. Generally have a long-term relationship with buyers and make purchases for them, often receiving, inspecting, warehousing, and shipping the merchandise to the buyers. They provide helpful market information to the clients and help them to obtain the best goods and prices available. Purchasing agents are in charge of all buying for their company. Okay? Unlike retail or wholesale buyers who purchase products for resale, purchasing agents buy the raw material, goods, and services their company needs to maintain the operations. कंपनी को जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो परचेजिंग एजेंट्स उनके लिए प्रोवाइड करते हैं. फिर आ जाते हैं हमारे कमीशन मर्चेंट्स. Take physical possession of the products and negotiate sales. Normally, they are not employed on a long-term basis, used most often in agriculture markets by farmers who do not want to sell their own output and do not belong to producer cooperatives. The commission merchants take a truckload of commodities to a central market. मैन्युफैक्चर की प्रोडक्ट्स लेके जाती हैं, मार्केट में सेल आउट करती हैं, उसमें से अपना कमीशन डिडक्ट कर लेते हैं और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको कमीशन मर्चेंट्स को दे देते हैं. जो सेलिंग एजेंट्स है इसमें वो लोग इंटायर आउटपुट जो मैन्युफैक्चर का है उसको सेल आउट करते हैं, लेकिन कमीशन मर्चेंट्स में इंटायर आउटपुट नहीं सेल आउट करते. जो मैन्युफैक्चर है उसको अपनी कोई प्रोडक्ट दे देता है कि आपने इसको सेल आउट करना है, उसको सेल आउट कर देते हैं, उसमें से अपना कमीशन अर्न करके जो रिमेनिंग बैलेंस है वो यूजर को दे देते हैं. ओके जी. देन थर्ड टाइप इज मैन्युफैक्चरर्स इन रिटेलर्स ब्रांचेस एंड ऑफिसेस. इसमें क्या होता है, इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही होलसेलर होता है, वो खुद ही प्रोडक्ट्स को परचेज एंड सेल करता है. Wholesaling operations conducted by sellers or buyers themselves, ठीक है जी, rather than through independent wholesalers. Sales branches and offices होते हैं, उसमें set up by manufacturers to improve inventory control, selling and promotion. Sales branches carry inventory. ठीक है जी, जो sales offices है उसमें मैन्युफैक्चरर बैठा होता है, उसमें डीलिंग्स होती हैं, फिर जो उनको डिमांड्स होती हैं, जो उनके उनको डिमांड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए, फिर वो सेल्स ऑफिसेस जो उनके सेल्स ब्रांचेस हैं वहां जाके ऑर्डर्स, सेल्स ऑफिसेस में ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, फिर सेल्स ब्रांचेस में जाके ऑर्डर्स को डिलीवर करते हैं. दे आर फाउंड इन इंडस्ट्री सच एज लंबर एंड ऑटोमेटिव इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स. दे डू नॉट कैरी इन्वेंट्री एंड आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन ड्राई गुड्स एंड ओशन इंडस्ट्रीज. सेल्स ऑफिसेस में इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते, उनके जो सेल्स ब्रांचेस हैं उसमें इन्वेंट्री पड़ा होता है, सेल्स ऑफिस में वो डीलिंग करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, फिर सेल्स ब्रांचेस से वो लोग ऑर्डर्स को डिस्पैच कर देते हैं. जी. देन हमारे परचेजिंग ऑफिसर्स हैं, परफॉर्म अ रोल सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रोकर्स और एजेंट्स बट आर पार्ट ऑफ बायर्स ऑर्गेनाइजेशन. मेनी रिटेलर्स सेट अप परचेजिंग ऑफिसर्स इन मेजर मार्केट्स लाइक पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, यहाँ पे अपने परचेजिंग ऑफिसर्स को सेट करते हैं और जो मटेरियल, जो गुड्स उनको चाहिए उसको परचेज करते हैं. Then there are different decisions
वो होलसेलर्स को कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जिनको उनको कंसिडर करना होता है, लुक आउट करता होता है अपने टारगेट मार्केट एंड पोजीशनिंग के डिसीजंस को। देखिए जी, उनके अपने टारगेट मार्केट उनके क्या होने चाहिए, एक साइज ऑफ कस्टमर क्या होना चाहिए, ओनली लार्ज रिटेलर्स को हमने टारगेट करना है या ओनली स्मॉल रिटेलर्स को हमने टारगेट करना है। तो अपने टारगेट साइज ऑफ कस्टमर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है। देन टाइप ऑफ कस्टमर्स, ओनली कन्वीनियंस स्टोर्स को हमने प्रोडक्ट सप्लाई करना है या ओनली स्पेशलिटी स्टोर्स को हमने सप्लाई करना है। द नीड फॉर सर्विस, कस्टमर्स हु नीड क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे सप्लाई करना है या हमने कैश पे सप्लाई करना है। देन हमने अपने आप को पोजीशन किस बेसिस पे करना है। देन अपने आप को पोजीशन किस बेसिस पे करना है। लाइक ऑटोमेटेड रीऑर्डरिंग के सिस्टम की बेस पे हमने पोजीशन करने हैं अपने कस्टमर्स को कि ऑटोमेटिक रीऑर्डर होगा थ्रू मेल। सेटअप मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एडवाइजिंग सिस्टम के बेस पे दे कैन आइडेंटिफाई मोर प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। जो हमारे जो बिग कस्टमर्स हैं, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, बिग रिटेलर्स हैं, सिर्फ हमने उनको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द टारगेट मार्केट। उनके साथ हमने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है और हमने फिर जो स्मॉल रिटेलर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हमने डिस्करेज करना है कि हम लोग सिर्फ लार्ज ऑर्डर्स लेते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे हमने अपने आप को पोजिशनिंग करनी है। देन मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स हमने अपने पास रखनी है और सर्विसेज हमने क्या क्या प्रोवाइड करनी है, कितनी लाइंस की प्रोडक्ट्स हमने अपने पास रखनी है। ठीक है, नाउ डेज होलसेलर्स आर कटिंग डाउन द लाइंस, दे कैरी मींस कम लाइंस रखते हैं अपने पास, प्रॉफिटेबल लाइन रखते हैं अपने पास। फिर हमने सर्विसेज, प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करें उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है, कौन कौन सी सर्विसेज को हमने प्रोडक्ट में इंक्लूड करना है और कौन कौन सी सर्विसेज को हमने ड्रॉप आउट कर देना है और उसको हमने एक्स्ट्रा से चार्ज करना है। ठीक है, देन प्राइसिंग, हमने अपनी प्रोडक्ट्स की कैसी रखनी है। फॉर एग्जांपल 20% हमने अपना रखा प्रॉफिट, उसमें से हमारे 17% एक्सपेंस हो गया, 3% हमारा प्रॉफिट हो गया। ये ऐसा हमने करना है। या फिर हमने कुछ प्रोडक्ट्स में अपने मार्जिन को बहुत कम कर देना है, ताकि मार्जिन को हमने कम रखना है मींस प्राइसेस को भी कम रखना है टू विन न्यू कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स को हमने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम अपने प्रॉफिट्स को कम रख देंगे या हम अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा रखेंगे। ये डिसीजंस हैं, ये जो होलसेलर्स ने देखने होते हैं। दे मे आस्क सप्लायर्स फॉर स्पेशल प्राइस ब्रेक्स एंड कैन टर्न देम इनटू एन इंक्रीज इन सप्लायर सेल्स। सप्लायर्स को कहते हैं कि जी हमें प्राइस ब्रेक्स दें, कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स दें ताकि हम आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सके। तो ये डिफरेंट डिसीजंस हैं अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट प्राइसिंग जो होलसेलर्स ने लुक थ्रू करने होते हैं, कंसिडर करने होते हैं। प्लेसिंग के डिसीजंस लेने होते हैं। कुछ होलसेलर्स जो हैं वो लो रेंट पे जगह ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं जहाँ पे लो टैक्स एरियाज हों या हमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम करनी पड़े। फिर इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स भी वो लोग उसी तरह के करते हैं। तो उनकी जो ऑर्डरिंग सिस्टम है, उनकी जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है वो आउटडेटेड होता है। ठीक है, सो दे हैव टू इन्वेस्ट इन ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग एंड ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम। तो प्लेसिंग किस टाइप की होनी है, आपने लो रेंट लेना है, आपने लो टैक्स एरियाज लेने हैं या फिर आपने ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज में इन्वेस्टमेंट करनी है। देन प्रमोशन, होलसेलर्स के जो प्रमोशन मीडिया है वो नॉर्मली प्रमोट नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स को, बट नाउ डेज जो बिजनेसेस है वो फ्लरिश हो रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। सो होलसेलर्स यूज ऑफ ट्रेड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन स्कैटर्ड एंड अनप्लान्ड होते हैं। सो दे हैव टू अडॉप्ट नॉन पर्सनल प्रमोशन टेक्निक्स, क्योंकि बिजनेसेस आजकल फ्लरिश हो रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। सो दे हैव टू लुक थ्रू इनटू द प्रमोशन। That was all about our today's lecture. If you have any question regarding this, you can ask.